Now we are online. Okay. So good afternoon to all of you. In the last session, we were dealing with our first spatial probability distribution, that is binomial distribution. It already gone through its exercise also, and let me know if you guys facing any kind of issue related to binomial. Then first I would like to interact for that particular, and if we are good with the binomial distribution, all the parameters related to binomial distribution, we are good with the binomial experiment, then today we are supposed to cover a Poisson distribution, second discrete probability distribution. आज का हमारा टॉपिक होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट उससे पहले अगर बाइनोमियल में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आपका रिप्लाई डाल दीजिए। सो आई विल लेट। ओके, ये संग बोल रहा है कोई डाउट नहीं है। जितने भी बंदे हैं 19 स्टूडेंट्स आर देयर विथ मी राइट नाउ, यू आर सपोज्ड टू रिप्लाई ओवर द चैट बॉक्स, देन आई विल एबल टू गेट द सिचुएशन विथ यू। प्रतीक और ये संग दोनों ही बोल रहे, बाकी के कहाँ गए सारे? डाउट है तो बताओ प्लीज। ओके, गुड 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 गुड। नाउ देयर इज अ फ्लो ऑफ comments. Okay, good. So how good we are good with the binomial. So let me take you for the next session, that is the next distribution. That is, once again we are gonna discuss one of the discrete distribution. As you know that the random variable are divided into two categories, that is continuous random variable, discrete random variable. And for the discrete random variable, for the discrete data set, we are dealing with the distribution related to discrete recently. So the first discrete distribution was binomial, and today we're gonna learn the next distribution, that will be Poisson distribution. Now this is once again for the discrete random variable. अब क्या है ये, चलिए देखते हैं। What is Poisson distribution? Okay. For the Poisson distribution, I'm dealing with discrete data once again. So I don't need to give you a further introduction, which I had given in the previous session. जो एक पूरा 10-12 स्लाइड का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, that was an introduction for all the discrete distributions. Okay, so let's try to get this things related to Poisson. What is the Poisson distribution? What is the formula? How to find the mean, median, mode? What will be the recurrence relation for the Poisson distribution? And then we will be dealing with the examples related to this Poisson distribution. So a random variable x is said to follow Poisson distribution if probability of x is given by p of x equals to x, or you may write p of x as e raised to minus lambda raised to x divided by x factorial, where x, which is my random variable, which is actually my discrete random variable, will take value from 0 to infinite. Will take value from 0 to infinite. As we know, here the terms are quite similar to the binomial, because this will be I will let you know, okay, Poisson distribution is nothing but a limiting case of binomial. So जैसे हमको पता था कि binomial में what was the x? X is the number of successes, is it now? So here once again x is number of successes. That means now observe the value of x. Earlier x के ऊपर एक लिमिटेशन था, is it now? कि x की वैल्यू 0 से 10 हो सकती है, 0 से 15 हो सकती है, 0 से 7 हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन n, कि n क्या था। That's it. N was number of times we were repeating that particular experiment. अब यहाँ पे देखिए x, I had chosen the value of x from, I had set the limits for x as 0, 1, 2, 3 up to infinite. मानी कि ट्रायल्स जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा होने वाला है इसमें। This is the biggest difference between Poisson and binomial. Binomial में जो number of trials that was quite limited, कि 7 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है। अब यहाँ पे we guys will gonna repeat the experiment for infinite times or infinitely many times. is it? कैसे देखिए, first of all वो अभी हम देखेंगे, कोई बात नहीं, उसको don't worry about that. But this is the probability function for the Poisson distribution.
It is e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, where x is my discrete random variable, the number of times I required for the, I'm looking for the successes. Okay. Let me move further, where lambda is called the parameter of Poisson distribution. What is lambda? Lambda is actually the parameter for this particular distribution. Now, actually, the Poisson is, as I said earlier, as I just said before 1 minute, Poisson distribution. That means this Poisson is the limiting case of binomial distribution. ये जो है वो binomial का limiting case है. कैसे? How? Let's see. कैसे होगा ये? देखते. चलिए, आपको अभी ये याद रखना है. What is the formula for the Poisson distribution? What is the probability function for the Poisson distribution? That is p of x equals to e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial, where x can take value from 0 to infinite. But observe, x is discrete random variable, so x can't take value 1.2, 2.7, 3.1 like that, is it? वो जो भी value होगी 0 से infinite तक, but वो positive integers ही रहेंगे. ठीक है? Let me take to the next slide. Now here in this particular slide, we guys gonna discuss about how Poisson comes from the binomial. So Poisson approximation to the binomial distribution. As I said in the previous slide, Poisson distribution is the limiting case of binomial distribution under the following conditions. Some of the conditions we guys are going to change some of the things related to binomial. Binomial में जो भी conditions थी उसको थोड़ा सा बदल रहे हैं, उसको change कर रहे हैं. कैसे? देखिए, the first, the number of trials should be infinitely large. Number of trials should be infinitely large. आगे के distribution में क्या था binomial में? The number of trials was finite, is it ना? हमने वहां पे वो लिखा था condition, number of trials must be finite. अब यहाँ पे क्या है? Number of trials should be infinitely large. That means what? N, which is number of trials, will tends to infinite and will goes to infinite. Okay. The second, the probability of success for each trial should be very, very small. Probability of success काफी छोटी होनी चाहिए. This is the second condition. That means, in other words, p must tends to 0. वो 0 की आजू बाजू होनी चाहिए. Might be 0.02, 0.01 like that. So p की वैल्यू काफी छोटी रहेगी, n की वैल्यू काफी बड़ी रहेगी. बाइनोमियल में जो p था वही p है, बाइनोमियल में जो n था वही n है, लेकिन फर्क क्या है? बाइनोमियल n was finite. Now here we will take the value of n will be quite large, बहुत बड़ी होगी, and the value of p will be very, very small. That means probability of getting success will be very, very rare, small. And what we are taking, what we are assuming that we are just taking n into p equals to lambda should be finite. अब n into p, अगर n infinite है, p बहुत छोटा है, n बहुत बड़ी वैल्यू है, p बहुत छोटी वैल्यू है, तो जो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है, surely that will be a finite number. बहुत एक नंबर आएगा वो finite होगा, उसको हम मीन बोलेंगे. अलिए अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कर दूं. अलिए in the binomial, what we were doing, we were labeling n into p equals to mu, is it ना? n into p equals to mu, that was our mean. So यहाँ पे जो mu है ना, वही तो lambda है. But why I am using this different notation? Because this is a standard notation for the Poisson parameter रखे, उसको हम lambda ही बोलते. This is a standard notation, तो उसको मैं change नहीं कर सकता. अब कहीं पे मैं a notation a use कर रहा हूँ, फिर b, फिर c, फिर d. If that notations are not standard, तो मैं उसकी जगह पे कुछ भी use कर लूँ, x use कर लूँ, y use कर लूँ, capital P use कर लूँ, q use कर लूँ, कुछ भी चलेगा. But when we are dealing with some of the standard notation, then we need to follow that. So for the Poisson, this is a standard notation. N into p will be lambda, and that lambda will be finite surely, and it will be constant for each and every trial. If this three conditions, if I'm going to add this 3 to the binomial, then that particular distribution will act as a Poisson distribution. वो जो नया distribution बनेगा कुछ change के साथ, उसको हम नया नाम देंगे, that is Poisson distribution. And we know that the binomial distribution क्या था? यही तो था. This was the formula for the binomial distribution. If you remember that probability of x equals to x was ncx p raised to x q raised to n minus x. जहाँ पे n क्या था?
n was number of times we are repeating that particular trial, x the number of times we required success, small p probability of success, small q probability of failure, is it? अब यहाँ पे जो छोटे से चेंज हम कर रहे हैं वो ये देख, I'm just gonna make this particular formula, उसको थोड़ा सा simplify मैं कर रहा हूँ, let me erase this ink then I'll be explaining. Okay, good. अब पी क्यू देख, इस क्यू को मैं छोटा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, दैट इज यस एन सी एक्स ऐसे ही पढ़ा है, रुक जा, नाउ दिस पी रेस टू एक्स, लेट मी राइट इट एज इट इज, पी रेस टू एक्स एंड क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू रेस टू एन into q raised to minus x, is it? We can write like that. अब q raised to minus x किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. So this, instead of writing q raised to minus x over there, what I'm doing, I'm writing q raised to minus q raised to x, positive x over here. And if p and q both are having the same power, so we may write p by q raised to x. तो इसी का ही सिंप्लीफिकेशन है. देखिए बाइनोमियल का ही केस है, बाइनोमियल की फॉर्मूला है, उसको थोड़ा मैं मचोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. And that q raised to n is as it is. Observe here. Now, as we know that p and q is having a relation, p plus q is always 1. So you may represent q in terms of p or you may represent p in terms of q. तो अगर q को represent करना है तो we can write like this, 1 minus p, q is equals to 1 minus p. तो यहाँ पे जो q था उसको मैं replace कर रहा हूँ 1 minus p. So now this formula will become p divided by 1 minus p raised to x, q raised to x, q raised to n, sorry. Now q, once again q is 1 minus p, 1 minus p raised to n. So simple ये वही है फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं किया मैंने. देखिए अब इसमें थोड़ा सा फर्क कर रहा हूँ, क्या करूँगा, दिस इज द सेम स्टेप, लास्ट स्लाइड में जो स्टेप था वही है ये. Now what I'm doing, now like I'm taking n into p equals to lambda, or in other words, if I'm gonna make p as a subject, then p will be lambda by n. So what I'm replacing lambda by n in terms of p over there. जहाँ पे भी लैम्बडा, जहाँ पे भी p है वहाँ पे मैं लैम्बडा बाय n करूँगा, because this is my one of the assumption. बाइनोमियल में भी यही था, n into p, वो तो म्यू ही है, म्यू मानी की मीन, वही म्यू है वही मीन है, पर उसको अभी अलग लेबलिंग दे रहे हैं, दैट इज लैम्बडा. सो I'm making p subject from this particular assumption, p will be lambda by n, and let me replace that thing over here, p of x equals to x as it is. ncx का ये छोटा सा simplification है, nothing else. ncx, that is n factorial divided by x factorial n minus x factorial. अब उसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर दे कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला लेके, तो कुछ ये जो यहाँ पे ये जो टर्म है, दैट इज नथिंग बट ncx. ओके, ncx उसका सिंप्लीफिकेशन. यू आर नॉट सपोज्ड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर प्रूफ, डोंट वरी, आपको कोई ये प्रूफ नहीं पूछने वाला है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने किया है. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग लैम्बडा बाय n इन टर्म्स ऑफ p. तो यहाँ पे जो p था वहां पे मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा बाय n. ऑब्जर्व, यहाँ पे भी p था, that p will be replaced by lambda by n, here it is, and 1 minus p, that is 1 minus lambda by, there is a typo over there, it should be lambda by n, it should be lambda by n. यहाँ पे mistake एक छोटी सी, it is a kind of typo, it should be lambda by n, rest to n. Good. Now the simplification of this, ये टर्म तो as it is रखा है मैंने, lambda by n rest to x, 1 minus lambda by n, यहाँ से n मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, then it will be n minus lambda divided by n, that n will, उसको n को 1 by n को मैं अगर बाहर निकालूँ, then it will be, ऊपर से lambda एक बाहर निकालूँ, नीचे से n बाहर निकालूँ, then it will be lambda rest to x, n rest to x. और सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा जितना भी उसका सिंप्लीफिकेशन करूँ, डिनोमिनेटर में टर्म निकलेगा 1 minus lambda by n rest to x. ये lambda by n को मैंने बाहर लिखा है, अभी तो ऐसे ही लिखा है, and this term is as it is. डिनोमिनेटर में एक टाइपिंग एरर है, that should be n over there. Good. Now moving further, अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, एक लिमिट का छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ, then it will be the end of this particular, when I'm gonna replace the limit n tends to infinite, as we know that as it is one of the condition that if in the binomial the number of trial tends to infinite, अगर limit में apply करूँ यहाँ पे limit n tends to infinite, because we are knowing that now we are going to repeat number of trials for infinite times. So अगर ये limit यहाँ पे apply करूँ मैं इस पूरे term के ऊपर, तो हमको पता है n tends to infinite, then 1 upon n tends to 0. ये छोटी सी बात सभी को पता है from our first semester
If n tends to infinite, that means 1 upon n tends to always 0. Always 0, sorry. 1 upon n 0, 2 by n 0, 3 by n 0, any constant divided by n will be 0 if n tends to infinite. So all these terms, 1 upon n, 2 upon n, 3 upon n, x minus 1 divided by n, all these terms will lead to 0. So 1 minus 0, 1, 1 minus 0, 1, 1 minus 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है वो 1 into 1 into 1 हो गए, 1 into 1 into 1 माने कि 1, is it? So applying limit n tends to infinite, what I will have in the numerator, it will be e raised to minus lambda. E raised to minus lambda क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है 1 minus lambda by n raised to x minus n, that will ends to e raised to minus lambda. यहाँ पे मैंने लिखा है, ये छोटी सी एक फॉर्मूला है बस वो लिमिट की जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हुई है. So this particular term will replace with e raised to minus lambda. This lambda raised to x will remain as it is. Here it is lambda raised to x. It is as it is, and denominator में जो x factorial था वो as it is. So by that way, बायनोमियल में अगर छोटे से आप चेंज करें, वो चेंज भी क्या है पता है हमको. We need to increase the number of trials as well as we need to just a minute. Yes, बेटा. नहीं जो चलने के लिए डालेगी कुछ. And sorry, मैं कहा था. Yes, here it is. So what are the limitations? What are the changes we are gonna do? एक तो हम n tends to infinite करें, माने कि number of times we are repeating trial, वो जो नंबर है ना उसको बहुत बड़ा कर रहे हैं, और अगर उसको बड़ा कर रहे हैं तो फिर probability of getting success बहुत छोटी होगी. तो ये दो छोटे से चेंज अगर हम करें बाइनोमियल में और उस probability function को थोड़ा simplify करें, then this will be the probability function. तो जो probability function निकल रहा है वो यही है. This is the way we can derive the probability function for the Poisson distribution, for one other distribution, और उसको हम अलग से label दे रहे हैं, that is this distribution is known as a Poisson distribution, is it? So, or if n tends to infinite, the number of times we can get success will be also from 0 to infinite, is it? Sure. So this is not your कंसर्न कि भाई आपको ये याद नहीं रखना है ये पूरा प्रूफ कैसे निकला है. दिस इज नॉट ये आपका काम नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला है. बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इफ आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ ऑफ सम ऑफ द फॉर्मूला. अगर ऐसे ही मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा तो आई विल नॉट फील कंफर्टेबल. नाउ दिस इज द वे वी कैन डिराइव पॉइजन फ्रॉम द बाइनोमियल. अब ये जैसे मैंने बोला कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, इट्स ओके, टोटली ओके, बट दिस इज गुड फॉर द नॉलेज. आप इसको समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें. आई एम नॉट गोना यूज रॉकेट साइंस. ओके, सो अगर कोई डाउट है तो बताइए प्लीज इसमें कि मैंने पॉइजन की फॉर्मूला कैसे डिराइव की. कैन यू एक्सप्लेन द टॉपिक अगेन? तुषार शेखिया. तुषार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? बेटा कहाँ पे दिक्कत है? यस बेटा, प्लीज बता बेटा, कोई बात नहीं, बता. स्टार्टिंग से तू साथ था कि नहीं था? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. I didn't get this topic. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत? Sir, I went for some work. Sir, when you started this, I went for some work and I didn't get anything after that. देख जल्दी से बता दूं हर किसी के लिए, क्योंकि ये वैसे दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आई कैन से यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस. देख तुषार क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है पूरा. तू बात करता रहे मुझसे, अनम्यूट रख अपना माइक अनम्यूट रख. तुझे पता है बाइनोमियल क्या है, ठीक है? अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिटेशन क्या बेटा कि हम फाइंड n आर n small n, that means number of times we are repeating trial, वो नंबर फाइनाइट था. I'm tossing a coin for 5 times, I'm tossing a coin for 10 times, I'm picking a ball from 10 balls. Things are finite. Things were finite, is it? अब that number of times we are repeating trial, वो जो n था ना उसको हम बहुत बड़ा कर रहे हैं. I'm tossing a coin for 2000 times. I'm tossing a single coin for 2000 times. I'm throwing a dice for 5000 times. In that case, what I'm doing, I'm increasing the trials. वो कितना बड़ा कर रहा हूँ? Infinitely large. कितना कर रहा हूँ बेटा? Up to infinite. Okay? This is first change which we are doing. ये पहला change हमने किया. फिर
if we are repeating the trial infinite times, और उसके साथ में और एक कंडीशन भी हम डाल रहे हैं कि probability of getting success must be very very small. Give me just 1 minute. 10 to Yes 0. ma'am. नहीं 12:38 अजीब आज थोड़ी हाँ 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 12:48 12:50 around. Okay. Sorry guys, we will be having one of the meeting at 1. हाँ, तो आज शायद कुछ ऐसा होगा कि आपकी लैब थोड़ी जल्दी फिनिश होगी. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी शायद. No, कोई sir. है जिसको प्रॉब्लम होगी अगर मैं आज थोड़ा जल्दी sir. खत्म करूँ तो? You guys will be happy. देख जस ने लिखा वाह. कोई बात नहीं, चल अब हम सीढ़ियाँ बात नहीं करते, इसमें रहते. चल अब तो पहला चेंज क्या किया बेटा हमने? एन को काफी बड़ा कर दिया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस पी को बहुत छोटा कर दिया. 10 to पी को 0. बहुत छोटा किया मैंने, ठीक है. और व्हाट आई एम डूइंग, n into p equals to lambda में रह रहा हूँ. दिस इज माय वन ऑफ द अजम्पशन, दिस इज अजम्पशन वी आर डूइंग. ओके, बाइनोमियल में भी यही कर रहे थे हम, n into p को म्यू बोल रहे थे, पता है तुझे? वो म्यू दैट मींस अ मीन. अब वही म्यू ही है, ये लैम्बडा जो है वो म्यू ही है. बोथ दिस आर क्वाइट सिमिलर, बट पॉइजन के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड नोटेशन है, दैट इज लैम्बडा. सो म्यू की जगह पे अभी हम लैम्बडा लिख रहे हैं. Sir, n tends to infinity और p tends to 0 और तो np finite ले कैसे? कोई एक ले ले. चल. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. n बहुत बड़ा बोल, एक बहुत बड़ा. जब वो इनफाइनाइट में टेंड कर रहा है और एक 0 पे टेंड कर रहा है तो फिर वो इनडिफाइन होना चाहिए ना. लेट n equals to 3000 और p बहुत छोटा रख रहा हूं, दैट इज 0.01 मान ले. तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? Surely it will be finite number. Yes or no? This is 1 divided by 100. हाँ. 3000 into 1 divided by 100. So क्या होगा बेटा? देखिए 30 आएगा. Is it? तुझे इसको बढ़ाना है, इसको छोटा करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बहुत छोटा रहेगा. छोटा माने कि फाइनाइट तो होगा ही, एक कांस्टेंट आएगा. Is it? So this is one more assumption. We are taking n into p equals to lambda. Okay. Now this will be now further we guys gonna label this particular as a mean for the Poisson distribution. जो बाइनोमियल में था वही होगा. ठीक है, चलो अब मुझे आगे बढ़ने दे. पॉइजन की बाइनोमियल की जो फॉर्मूला थी यही थी, ncxp raised to x q raised to n minus x. Is it? You agree? Yes sir. Good. अब यहाँ पे देख q की पावर क्या है? q raised to n minus x. तो q को मैं लिख सकता हूँ, q को मैं क्या लिख सकता हूँ? Let me raise to n. Sorry. हाँ. Yes. अरे यार, I need to pick the pen once again. Yes, q को मैं क्या लिख सकता हूँ? q raised to n into q raised to minus. ठीक है, पूरा समझ में आ गया. और q को मैंने रिप्लेस किया 1 minus p से. ठीक है, q को रिप्लेस किया 1 minus ये p. सब अब क्या करना है? चल वही स्टेप यहीं पे फिर से. Is it? Let me give the whole slide. पहले मुझे पूरा लेने दे यहाँ तक. ठीक है, लैम्डा जहाँ पे p है वहाँ लैम्डा पे बाय n ले रहा हूँ, इसी में लैम्डा बाय n ले रहा हूँ. थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ, थोड़ा वो हमारा सीरीज वाला नॉलेज इसमें अप्लाई कर रहा हूँ. ncx को सिंपलीफाई किया, नथिंग एल्स, इसमें से n कॉमन निकाला, थोड़ा सिंपलीफाई किया. और जो अब तो सिर्फ सॉल्व करना है. जब मैं n टेंड्स टू इनफिनिट ले रहा हूँ ना दोनों तरफ, तो मुझे ये मिल रहा है e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. So this is we guys gonna label this particular as a limiting case of binomial. बाइनोमियल में अगर थोड़े से चेंज कर दे, n को बढ़ा दे, p को छोटा कर दे, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना वो इस तरीके से दिखेगा. एंड दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन वी गोना असाइन अ न्यू नेम टू दैट, एंड दैट न्यू नेम इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो दिस इज अ थिंग रिलेटेड टू पॉइसन. अब समझ में आया सही क्या कि कोई और डाउट है प्लीज बता बेटा. अब मैंने देखिए ये पूरा फिर से अभी डिस्कस नहीं किया. ठीक है, आई थिंक सो यू आर गुड विद दिस. इसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा तुझे. यस सर. गुड, थैंक यू. चल, let me move further. It's a normal solve किया, कुछ नहीं. So this will be the formula, this will be the probability function for the Poisson distribution. Let me take you further. What are the conditions for the Poisson, when we can apply the Poisson distribution, Poisson approximation? Okay, look, the Poisson distribution holds under the following condition. Poisson हर कहीं नहीं लगा सकते. कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो Poisson distribution है. Look, पहली बात तो एक x should be discrete, वो तो पता ही हमको, because we are dealing with the discrete data, discrete enumerable, so x must be discrete. That's good. पहला समझ में आ रहा है, x must be discrete होना चाहिए. हाँ ठीक है. Number of trials is very large, must be very large, and must be very large, and बहुत बड़ा होना चाहिए. Then probability of success must be very small.
probability of success must be very small, or I can say very close to 0, 0.01, 0.02, 0.001 even. Okay, और लैम्बडा मस्ट बी फाइनाइट, लैम्बडा इज विच इज इक्वल्स टू n into p, वो फाइनाइट ही रहेगा बिकॉज n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा होगा, तो लैम्बडा तो फाइनाइट ही रहेगा. एंड द अकरेंस इज वेरी रेयर, अकरेंसेस आर वेरी रेयर, बहुत कम होना चाहिए अकरेंस. अब ये इसके लिए एक एग्जांपल दूं चल मैं, मेरे पास एक 1000 पेज वाली बुक है. आई एम हैविंग अ बुक विथ जिसमें 1000 पेज है, ठीक है, 1000 पेज. अब इफ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ टाइपिंग एरर फ्रॉम अ पेज, एक पेज में से टाइपिंग एरर मुझे फाइंड करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, इज इट ना? सो अकरेंस मस्ट बी वेरी वेरी रेयर, कि उसका अकरेंस बहुत कम होना चाहिए. ये एसोसिएट कर सकते हैं आप बहुत इजीली इसके साथ कि पी की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए. पी अगर स्मॉल है दैट मीन्स कि अकरेंस काफी बहुत ही रेयर होगा ऑफ गेटिंग ए सक्सेस, इज इट? Let me give you some of the examples so that will make the things clear in your mind. Yes, these are some of the examples when we can apply the Poisson approximation. Look, the first one, the number of defective bulbs produced by a reputed company. Reputed company अगर तू ले ले कि suppose बजाज ले ले, तो उसका नाम है ना बाजार में, तो उसके बल्ब बहुत बहुत ही रेयर केस में वो बल्ब डिफेक्टिव होंगे. फिलिप्स ले ले, ब्रांडेड कंपनी, वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी, तो उसका डिफेक्टिव रेट बहुत कम होगा. मान रहे हो? यस. द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर मिनट, एक मिनट में कितने कॉल आते हैं तुझे? बहुत कम होंगे. अगर हर किसी की बात करूं मैं, छोड़ दे कोई कोई बड़ा सा आदमी है जो हर बार फोन पे लगा रहता है, उसको तो अगर छोड़ दे हम, तो पर मिनट गेटिंग ए टेलीफोन कॉल इज वेरी रेयर. अ नंबर ऑफ कार्स पासिंग इन अ सर्टेन पॉइंट इन 1 मिनट, एक ही मिनट में कोई एक पॉइंट से पास होने वाली कार, नंबर ऑफ कार्स बहुत कम होगी. एज आई सेड, प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज इन अ लार्ज टेक्स्ट, बहुत बड़ी एक बुक है, बहुत ज्यादा पेज वाली, उसमें हर एक पेज में रहने वाला वो प्रिंट मिस्टेक बहुत कम होगा. दिस विल मेक द थिंग्स क्लियर इन योर माइंड. द पर्सन बोर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी. अब तू सोच, राजकोट की अगर बात करूं मैं, एक साल में कितने ब्लाइंड बच्चे पैदा हो रहे होंगे? बहुत कम होगा वो फिगर, होगा लेकिन बहुत कम होगा, कि जो फुली ब्लाइंड है, वो जो देख नहीं सकते, वो बच्चे जो न्यूबॉर्न है वो देख नहीं सकते, बहुत कम फिगर होगा. यस बेटा प्लीज. Sir, number 3 example, sir, a car passing from a certain point in a 1 minute. अगर example लेता है हाईवे में, लेता है सर, हाईवे में तो जाते ही रहता है कार, 1 मिनट में तो बहुत कार पास होगा. कोई एक पॉइंट के पास बेटा, कोई एक पॉइंट फिक्स में कर दूं कि सपोज कि कोई एक अलग सा ऐसा कोई पॉइंट है कि जहाँ पे कोई जाता ही नहीं. चल ये शायद तेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने, ये एग्जांपल हमने लिया था पहले भी, ठीक है. थर्ड को मत कंसिडर कर, चल उसके लिए एक एग्जांपल मैं दूंगा तुझे, तब जाके तुझे समझ में आएगा. डोंट कंसिडर थर्ड राइट नाउ, फोकस ऑन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. क्या ये समझ में आ रहे हैं? थर्ड के लिए मेरे पास पूरा एग्जांपल है इसी स्लाइड में, इसी टॉपिक में, तब जाके तुझे समझ में आएगा जब मैं तुझे पूरी सिचुएशन एक दूंगा. ठीक है, आर यू गुड विद द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ? लेट मी नो. ऑल ऑफ तो नहीं होगा ना, कोई भी एग्जांपल जनरली, अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर, जनरली बात करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, कुछ ना जनरली कुछ में कॉन्ट्रडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर ही ये देगा. इसमें. हाँ, ऐसे तो रियल लाइफ में काफी कुछ ऐसे एग्जांपल आपको मिल ही जाएंगे जो एक आइडियल सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला कि थर्ड को अभी छोड़ दे तू. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, गुड विद दिस? समझ में आ रहा है कि रेयर अकरेंस का मतलब क्या है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हर किसी Yes, sir. से. आर यू गाइस गेटिंग Yes, दिस sir. प्रॉपर्ली? Yes, sir. Good, 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 good. So, yes, now let's discuss the mean for the Poisson distribution. अब हमको पता है कि वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. कौन सा रैंडम वेरिएबल के साथ बात कर रहे हैं हम? जब अभी जो x है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? हम जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ रहे हैं, जो रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूअस? हाँ, डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट सर. डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट के लिए मीन का नोटेशन क्या है हमारा? Discrete. e of x एक्सपेक्टेशन, इज इट? उसकी फॉर्मूला क्या है? समेशन x p of x, is it? x p of x or x, yes, p of x. This is the formula for to identify the mean. अब उसी फॉर्मूला से मैं मीन आइडेंटिफाई करूंगा. देखिए,
the mean or you can say expected value for the Poisson distribution is observed here. Once again, a thing which you are not supposed to remember, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम में, so कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये पूरी प्रूफ तैयार करनी है नहीं करनी है, इट्स ओके, टोटली गुड. बट अगर इसी फॉर्मूला से मैं निकालूं एक्स पी ऑफ एक्स समेशन एक्स पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स जो हमने अभी याद किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द पॉइजन दैट इज ई रेज़ टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेज़ टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फिर से करूं, थोड़े से बेसिक टर्म्स का मैं यूज करूं, then at the end I will have lambda e raised to minus lambda e raised to lambda equivalents to lambda. That means कि पॉइजन के लिए b मीन जो है वो लैम्बडा ही है और लैम्बडा का मतलब है n इंटू पी. लैम्बडा का क्या मतलब है, लैम्बडा हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, n इंटू पी. सो टेक केयर, आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रूफ कि ये कैसे आ रहा है. अगर किसी को समझना है तो बहुत छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस कि पॉइजन का मीन जो है वो फिर से n इंटू पी है, n मानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इन दोनों का प्रोडक्ट, उसको अभी हम लेबल कर रहे हैं लैम्बडा से. सो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्बडा. लेट मी टेक यू फर्दर फॉर द वेरिएंस. द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस की भी फॉर्मूला हमको पता है कि वेरिएंस का नोटेशन ये रहता था, वेरिएंस ऑफ एक्स, उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसे थी, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ e ऑफ एक्स. This is the formula for the variance. अब उसी से अगर the similar kind of process if I'm gonna repeat for the variance, तो देख interestingly variance भी आएगा लैम्बडा. सो मीन जो है वो भी लैम्बडा है, वेरिएंस है वो भी लैम्बडा है, और अगर वेरिएंस लैम्बडा है तो देन वी मे गो फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली द रूट ऑफ वेरिएंस, इज इट? सो अगर इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, रुक जा एक मिनट, once again we are not interested in this particular proof, पर ये आपके रेफरेंस के लिए दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर वन ऑफ यू वांट टू नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग, क्यों मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इसका वेरिएंस भी लैम्बडा ही है, क्यों इसका मीन भी लैम्बडा है, तो उसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है. We may discuss personally if any of you is having any kind of doubt in any of these particular steps, okay? But I am interested to discuss about some of the parameters. So standard deviation, हमको पता है कि standard deviation is the square root of variance. तो variance जो है वो हमने अभी देखा कि लैम्बडा है, तो standard deviation भी होगा लैम्बडा. अब मोड अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे दो केस होंगे मोड के लिए. Look, जब भी कोई probability distribution पढ़ रहे हैं तो we must be good with its parameter. उसके पैरामीटर कितने हैं? मीन, मीडियन, मोड, एंड these are the measures related to central tendency, and we must be good with the measures of dispersion, that is standard deviation and variance. Okay, so इसका variance जो है वो रूट लैम्बडा, standard deviation है वो अंडर रूट लैम्बडा होगा. अब इसका मोड अगर फाइंड करना है, if we wish to find its mode, तो यहाँ पे दो वे में जाएगी बात, as we are discussing the binomial. What is case one? Case one, lambda is an integer. If lambda is an integer, if lambda, which is n into p, then lambda minus 1 is also an integer. अगर जो मेरा lambda है वो integer है, माने कि 2, 3, 5, 15, 16, like that. अगर lambda integer है तो lambda minus 1 भी integer रहेगा. In that case, this distribution will be bimodal. Bimodal means कि इसके पास दो मोड रहेंगे. उसके दो मोड क्या होंगे? फर्स्ट मोड होगा lambda minus 1 एंड सेकेंड होगा lambda खुद. सो देख फिर से मीन जो है वो भी लैम्बडा है, उसका मीडियन भी लैम्बडा है, सॉरी उसका क्या था वो, यस, मीन लैम्बडा, मोड भी लैम्बडा. लैम्बडा अगर लैम्बडा इंटीजर है देन दो मोड रहेंगे, लैम्बडा माइनस 1 एज वेल एज लैम्बडा. इफ एंड ओनली इफ माय लैम्बडा इज इंटीजर. पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार लैम्बडा इंटीजर ही. It's quite possible my lambda is non-integer. It's quite possible that my lambda is having value 1 by 2, my lambda is having value 5 by 3, my lambda is having value 2 by 3, like that. In that case, उस डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही मोड रहेगा, that means उसको यूनिमॉडल बोल सकते हैं. ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही मोड है, उसको यूनिमॉडल बोल सकते हैं. दो मोड है, उसको बाई मॉडल बोल सकते हैं. ओके, तो सेकंड केस में मैं क्या बात कर रहा हूँ, इफ माय लैम्बडा इज नॉट एन इंटीजर, तो क्या होगा? देन द मोड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैम्बडा. Integral part of lambda, or we can say the greatest integer of lambda. is it greatest integer of lambda? मतलब कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा lambda है मान लीजिए कि 3 है, if lambda is 3,
तो इसका मतलब क्या, कौन से केस में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में कि माय लैम्बडा इज इंटीजर। तो इस केस में मोड, दो मोड रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के पास। क्या, कौन कौन से दो मोड होंगे, एक तो लैम्बडा खुद और सेकंड क्या है, लैम्बडा माइनस वन। एक लैम्बडा और दूसरा लैम्बडा माइनस वन। तो यहाँ पे मोड दो रहेंगे, एक 3 और एक 2, 3 and 3 minus 1 that is 2। बट अगर 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 मेरा लैम्बडा, लैम्बडा इज 3.2 लाइक दैट, 3.2, और लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2.7 लाइक दैट, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में, then what will be the mode? Mode will be the greatest integer of 3.2, और 3.2 का greatest integer क्या निकलता है, 3। In this case, mode will be the greatest integer of 2.7, और 2.7 का greatest integer क्या निकलता है, 2। तो यहाँ पे mode 2 होगा, यहाँ पे mode की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है। So this is two different cases. You can identify your mode for the Poisson distribution। उसके लिए दो केस आपको डिस्कस करने हैं, या तो इंटीजर है या तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर है तो दो मोड निकलेंगे, वो लैम्बडा खुद और एक वैल्यू कम। अगर वो नॉन इंटीजर है तो we will take the greatest integer function, greatest integer part of that particular lambda, is it? और in that case lambda, वो लैम्बडा और लैम्बडा माइनस वन के बीच में है, वो मोड जो है ना, वो लैम्बडा और लैम्बडा माइनस वन के बीच में ही रहेगा। That is just for your information. So are we good with the mean, median, mode, standard deviation? ये सब भी को समझ में आ रहा है? Let me know quickly on the chat box. Nikita Daredi, Manav Aditya, Nikita Kakkar, Anuj Boricha. Good. So recurrence formula, मीटिंग का टाइम हो चुका है। Let me discuss recurrence, and from the next we will be discussing about the examples। चलिए जल्दी से, मुझे मीटिंग में जाने से पहले ये रिकरेंस रिलेशन डिस्कस कर लेना है। ओके, we had already discussed about the recurrence relation of binomial। हमने रिकरेंस रिलेशन बाइनोमियल के लिए डिस्कस किया था, याद है किसी को? मैंने क्या किया था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की फॉर्मूला लिखी थी, फिर क्या लिखा था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन की फॉर्मूला लिखी थी, फिर इन दोनों का रेशियो लिया था और एक रिलेशन आइडेंटिफाई किया था जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस आई एम गोना डील हियर। This is a probability function for the Poisson distribution. P of x, probability of x equals to x, that is e raised to minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. Now this is a probability for x plus 1. जहाँ पे x था वहाँ पे मैं x plus 1 कर रहा हूँ, e raised to minus lambda, lambda raised to x plus 1 divided by x plus 1 the factorial. Now what I'm doing, I'm taking ratio of both this. In the numerator I'm representing p of x plus 1, denominator में ये लिख रहा हूँ p of x. So both this will be in the ratio of each other। ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर जो है उसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल लिया है। और छोटी सी एक सिंप्लीफिकेशन, x plus 1 the factorial, you can represent that x plus 1 factorial into as a x plus 1 into x factorial, is it? तो अगर इसको मैं ऐसे x plus 1 into x factorial से रिप्लेस करूँ तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, e raised to minus lambda यहाँ दोनों से कैंसिल हो सकता है, e raised to this is lambda raised to x plus 1, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, lambda raised to x into lambda, और डिनोमिनेटर में lambda raised to x था, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या बचा, देखो न्यूमरेटर में से सिर्फ lambda बचा, डिनोमिनेटर में से x plus 1 बचा। So this is the simplification of probability that x plus 1 divided by p of x। अगर इसमें से p of x plus 1 को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो p of x will get multiply over here। So this will be my recurrence relation for Poisson distribution। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अगर मेरे पास p of 2 है, using this formula, मेरे पास p of 2 है, lambda की वैल्यू है, तो using this formula, just using this simple formula, lambda देना है, x की वैल्यू लिखनी है और p of x लिखना है, बात खत्म। I will able to identify p of 3। p of 3 मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इस फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकता हूँ, बट ये अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इससे भी कर सकते हैं आप। Is it so? What is this? This is recurrence relation। If you are having p of 2, then we will able to go for p of 3। If you are having p of 3, तो p of 3 से p of 4 पे जा सकते हैं, p of 4 है तो मेरे पास p of 5 पे जा सकते हैं, ठीक है। So this formula is known as a recurrence or formula, recurrence relation for the Poisson distribution। Are we guys good with this? एक बार और समझाऊं, can we say Poisson is equals to symmetric distribution? Can we say Poisson equals to symmetric distribution? Yesang is throwing one of the question towards all of us,
So can we say the Poisson distribution is symmetric distribution? अब बोल यशांक, कब बोलेंगे कि सिमेट्रिक है? कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है ऐसा कब बोल सकते हैं? जब उसका मीन मीडियन मोड तीनों सेम हो. इज इट? Yes, sir. अब मैंने क्या मीडियन के बारे में कुछ डिस्कशन किया? Had I discussed anything for the median? No. इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन मैंने फाइंड किया कहीं पे? देख, फिर से लेके चलता हूँ. देख, पहले मैंने क्या किया, देख, कंडीशन, उसके बाद मीन दिखाया, मीन सिखाया तुझे, उसके बाद वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन मोड. हैड वी डिस्कस मीडियन? नो. अभी तक मैंने मीडियन डिसाइड, मैंने तेरे साथ मीडियन डिस्कस नहीं किया. सो अभी तू मत बोल ये सिमेट्रिक है या नहीं है. अगर मीडियन भी लैम्बडा आ रहा है ना, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन भी लैम्बडा है तो बोल सकेंगे कि ये सिमेट्रिक है. आ रही बात समझ में यशांक? गुड क्वेश्चन, थैंक यू, वेरी वेरी गुड Yes, क्वेश्चन. sir. तो मीडियन अभी बाकी है, वो उसका डिस्कशन करने के बाद तू डिसाइड करना कि क्या ये सिमेट्रिक है क्या नहीं है. अभी के लिए ये बताइए, रिकंसिलिएशन तुझे समझ में आ रहा है? सभी को, कितनों को समझ में आ रहा है रिकंसिलिएशन? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? थ्रो शूट योर कमेंट और द चैट बॉक्स, जल्दी कीजिए, क्विकली. आई एम जस्ट हैविंग 1 मिनट. Good. Thank you. So what we are doing, I need to end the session here. I'll be arranging one more 1 घंटा और कभी मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन कब अभी नहीं बोलता, ठीक है? सो कोई ऐसा है जिसकी अटेंडेंस लेनी बाकी है? Sir, AI5. सॉरी, AI5.